एजुकेयर सोसाइटी आपसे करती है और आगे की प्रोसीडिंग्स के लिए हम डॉक्टर शंभू शरण गुप्ता जी के पास चलते हैं। डॉक्टर शंभू शरण सर। On behalf of Braves Educare Society, I, Dr. Shambhu Sharan Gupta, would like to convey our warm greetings and welcome you all participants to the online workshop on Google News Initiative, verification, training, media literacy, fact checking and data verification. Actually, will the special objectives of on the media education in changing times. This concept is part of knowledge sharing initiative taken by Mr. Rahul Mittal, Secretary, Braves Educare Society, New Delhi. This is privilege to have with us Google certified fact checker and data verifier Professor Umesh Arya. I am very much obliged to renowned media personality, educationist, life coach, healer, and corporate trainer, Professor Umesh Arya, to spare his precious time for us. Professor Umesh Arya is not only a renowned media educator, but also he is a multi-dimensional personality. Describing his personality in few words will be injustice to him. But with a time constraints, I would like to express that since more than 21 years, Professor Arya is a chairman of Department of Mass Communication in Guru Jambheshwar University of Science and Technology, Hisar, Haryana. Professor Arya also specialized in social media data analysis and has delivered more than 100 lectures on various topics ranging from technological applications to neuro-linguistic programming. Professor Arya has copyrighted one term, TechVac, technology vacation. He aspires to leverage the online education with his own YouTube channel. Professor Arya has delivered lectures on the EduSat on information overload, meta literacy, effective searching techniques, Google power searching techniques, waste reduction in learning, etc. Apart from this, Professor Arya is certified yoga and meditation teacher of the art of living. He is a certified therapist for many psychological ailments like phobia, anxiety, OCD, etc. He is a corporate trainer and is on the panel of many blue chip companies like Jindal Stainless Steel, HCL, Co-Create Technology, Wipro, etc. His main passion is to coach people, explore the quantum possibility inside them. Before starting the workshop, one more thing I would like to request to all attendees that during the session, please post your queries by text in the chat box. These will be answered at the end of the workshop. Now I would like request to Professor Umesh Arya, kindly start the workshop session. Professor Umesh Arya. Thank you, sir. Thank you, Shambhu Sharan ji. Thank you so much. मेरी आवाज सुन रही है सबको? Am I audible? Yes, sir. Okay. Yes, right. sir. Yes, बिल्कुल सर। Very good. So, Rahul ji, what we will do is that one of you will have to be on the unmute mode so that I will be asking in between कि मेरी आवाज आ रही है क्या, वीडियो सही है क्या, because कई बार issues हो जाते हैं और मैं बोलता रहता हूँ, आवाज सुनती नहीं है, इसलिए एक आप में से कोई भी, हाँ, प्लीज अनम्यूट मोड पे रहे। बिल्कुल सर। हाँ,
तो राहुल रहेंगे आप? हाँ बिल्कुल सर। ओके, बाकी सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार अपना ये म्यूट कर लेंगे। हाँ, आप वीडियो ऑन रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट? वीडियो आप ऑन रख सकते हो। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एंड मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर बिल्कुल कर सकते हैं सर, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं सर। हाँ ठीक है, ये आपको दिख रही है स्क्रीन यहाँ? यस सर। ओके राइट, ठीक है। तो कुछ इश्यूज ऐसे होंगे जो मैं बार बार बीच में 10 मिनट्स में 20 मिनट्स में एक बार आपसे पूछता रहूंगा, राइट? बिल्कुल सर। तो शुड वी स्टार्ट राहुल जी? बिल्कुल सर। ओके राइट, सो हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स आर देयर नाउ? सर अभी 65 हो चुके हैं और बाकी यूट्यूब पे भी लाइव है सर। अच्छा राइट, वेरी गुड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी pay my gratitude to the organizers, and I'm so glad to be here. In fact, people like you are there with your students, and that's why the Google News Initiative India can do its work, right? So ultimate target audiences, they are you, and I'm so grateful and happy to be here at this moment. And I'll try to share the best of my knowledge which I have with me today. And the knowledge means that we will be discussing some theory part of it, but ultimately we will be coming to the practical session of it, right? Because the theory sessions, theory material you can read on the internet also. But when it comes to the practical session, and when you can do the fact checking yourself, then it will be a good thing certainly. So we'll start with the first slide. And as you know that today's topic is media literacy, busting fake news through digital tools, right? So it will be a hands-on training session, you can say. So let's start, and let me tell you what we have for you today. So we'll see what is misinformation. Fake news is one type of misinformation, and what are different types of misinformation, what are their various formats. And we'll be having a hands-on training on some digital tools and conventional methods also to verify the accuracy of text, images, and videos. Like you must be receiving many text messages on WhatsApp, social media, and Facebook, Twitter, etc., and images and videos. So, and we unknowingly pass on these to other people so that they are also informed. But are these accurate? We want to verify that through digital tools. And in the last, there will be a chance for you to become a Factshala training of Google News Initiative India Training Network, and I'll see how you can apply. So overall, it's a good agenda, and इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, right? So I'll be bilingual, Rahul ji. I think it suits your students, right? बिल्कुल सर। हाँ, because कुछ terms ऐसी हैं जो हिंदी में ही ठीक रहेंगी. तो सबसे पहले आते हैं why to learn. इसके बगैर भी तो लाइफ चल रही है. हम इसको सीखना क्यों है? Why? Okay, you are absolutely right. अभी तक भी सब कुछ ठीक चल रहा है इसके बगैर भी, but let us see कि हमें क्यों सीखना है ये. So I am quoting a research study which says that the falsehood, that is fake news, diffused significantly farther, faster, and deeper, and more broadly than truths in all categories of information, right? इससे क्लियर हो जाता है कि जो फेक न्यूज है, जो गलत इंफॉर्मेशन है, वो सच की बजाय, सच्ची इंफॉर्मेशन की बजाय ज्यादा दूर तक ट्रेवल करती है, फास्ट ट्रेवल करती है और ज्यादा गहरे तक ट्रेवल करती है, राइट? और इन सब इंफॉर्मेशन में भी जो फॉल्स पॉलिटिकल न्यूज है वो ज्यादा लोगों तक पहुंचती है, वो फास्ट पहुंचती है, एंड डीपर इनटू देयर नेटवर्क्स इट हिट्स, राइट, देन एनी कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन. तो आप देखिए हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर ऑल बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस फर्स्ट, राइट? आवर गवर्नमेंट, आवर offices, all these kind of education institutes, every single institution is based on the political institution, right? So when the political institution is threatened, then definitely democracy is being threatened, right? And आप देखिए वही हो रहा है आज यूएस में, जो ट्रम्प को जो इलेक्ट किया था, ऐसा बोलते हैं कि रशियन प्रोपेगेंडा था, रशियन फेक न्यूज थी, उसने बहुत बड़ा रोल निभाया था ट्रम्प को इलेक्ट करवाने में, and as a result America is paying its price now, right?
So इसलिए हमें ये सीखना है, इसके बगैर लाइफ अभी तक चल रही थी लेकिन शायद आगे थोड़ी डिफिकल्ट होने वाली लाइफ है, तो we have to do that, right? Let's come to the definition part of it. As you know that the academicians, they are more interested in definitions, and once you decide definition of something, it gives a direction to your effort. So first definition is the media literacy, which is the skill to gain access to the media. We won't read complete definition, just focus on the red part of it. Gain access to the media and interpret and critically evaluate the content, right? Now we have already gained access to the media because all of us, they are having smartphone, good broadband access, all of us, we have that, right? So first condition is there. So are we able to interpret and critically evaluate? क्या हमें उसको मैसेज को पढ़ना आता है, उसके पीछे छुपी हुई भावनाओं को, उसका पर्पस को पता करना आता है हमें? That is the media literacy definition, right? So fake news is defined as false stories that masquerade as the bona fide news stories. यानी जो ऐसी false stories होती हैं जो कि बिल्कुल सही सच्ची न्यूज स्टोरी लगती हैं, उसको बोलते हैं फेक न्यूज. नाउ ये दो जो डेफिनेशन पे हमारी पूरी आज की वर्कशॉप बेस्ड है. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मीडिया लिटरेसी एंड फेक न्यूज? मींस मीडिया लिटरेसी आपको इवैल्यूएट करना सिखाती है किस चीज को, फॉल्स स्टोरीज को, राइट? यहाँ पे आपको जरूरत है. तो मीडिया लिटरेसी अभी गूगल एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं इंडिया में. इनफैक्ट दैट इज द बिगेस्ट वन in which it will teach you how to evaluate the different messages in the media so that you are protected from the fake news. So let us go to Ashtanga Yoga by Maharishi Patanjali. So what is the relation of Ashtanga Yoga with fake news? You will be slightly confused here, and some of you may be interested to know because this is a very ancient text. And let me tell you 4-5 principles of it, then I'll come to the relevance of this Ashtanga Yoga with the fake news in the next 4 to 5 slides, right? So Maharishi Patanjali says, what is yoga? He says restraining the modulations of the mind is yoga, right? When your mind is unstable, it has got some kind of waverness, it's not normal, then it is restraining that tendency is called the yoga, right? Okay. He again says that if the mind is in the modulation, then following thing happens, that it wants proof, but you focus on the red square, it leads to wrong understanding of the thing, and it creates an illusion. एक भ्रम की स्थिति create हो जाती है and एक bad memory create हो जाती है, right? और जब ये सब कुछ होता है, then the self identifies with these modulation as itself, meaning thereby कि हम अपने आप को इन modulation से, यानी wrong understanding से, illusion से, memory से identify करने लगते हैं. हम सोचने लगते हैं कि ये हमारा ही part है, right? और फिर महर्षि पतंजलि बोलते हैं कि ये 5 टाइप की जो वृत्तिज हैं, वृत्तिज means modulation, wanting proof, wrong understanding, illusion, sleep and memory. ये troublesome भी हो सकती हैं और non troublesome भी हो सकती है, right? So this was a brief gist of Ashtanga Yoga. Let us see. Now we move forward to our fake news, and we'll come back to it within the next 3-4 slides. So we are going to discuss the misinformation ecosystem, and in that we will see the different types of mis, dis and malinformation, right? So first is misinformation. So we are all victims of misinformation, meaning thereby we receive a message on the WhatsApp or Facebook, whatever, we without even thinking we passed on to the other person, we just forward it, and we don't have any bad intention to create some problem in the society, but this is misinformation when we believe that it is true and we don't have any genuine feeling to harm the society, right? This is mis. Now what is this disinformation? So in this, the broadcast, the forwarding of the message is intentional. You know that the message is wrong. It can create the problem in the society, or it can create the problem for some particular political party or the religion, Hindu, Muslim, etc. So, but still you forward it, right? This is disinformation. So political parties, they are accused of running the campaigns during the elections, right? And the next one is, rather the last one is malinformation. In malinformation, information is genuine, everything is genuine,
but we use it to harm the socially disadvantaged people, right? Again, इसमें भी intentional dissemination होता है, right? अब हमने तीनों टाइप देख ली हैं. मेल इंफॉर्मेशन थोड़ा सा जानना मुश्किल है, इसके लिए मैं आपको एक फोटो भी दिखा रहा हूँ. Yes, I think this is visible to you, this photo, right? Yes sir, yes sir. हाँ, very good. अब आप देखिएगा ये अगर फोटो आपके पास आ जाए, ब्रॉडकास्ट अगर होके आ जाए, तो आपको ये फोटो एक फेक फोटो की कैटेगरी में आप इसको डाल सकते हो, राइट? बिकॉज ये कुछ जैन साधुज हैं जो कि बड़े रिस्पेक्टेड हैं, बिकॉज दे हैव लेफ्ट देयर hundreds and thousands of crores of property and they have left everything and joined Jainism, right? And they are sitting before a normal person like me to, you know, learn something, and I am sitting at a very higher level from them, right? So but I tell you, this is a very you know genuine image. इसमें बिल्कुल भी कहीं से भी कोई एडिटिंग नहीं की है, except that इनकी आइडेंटिटी छुपा दी है मैंने, right? I am a yoga and meditation teacher. We were invited by the local Jain Sthanak to teach yoga and meditation technique to the Jain sadhu, right? That was the only truth. And I was so happy to be that, because मेरी कोई हैसियत नहीं है इन लोगों के सामने इतना ऊपर बैठने की और इनको कुछ बताने की, right? But since they called us with respect, so we went there, right? Now everything is good. My wishes, my you know, my heart is very pure. Their learning is so pure. Everything is so good now. But for example, some of you, if they broadcast this image on the net and give it a different twist, that see so many big people are sitting before a, you know, a grahast like this, and what has gone to the you know, what has become to these Jain sadhus, and they don't believe their Jainism and they believe others to teach them yoga and meditation. Could you get my point, right, Shambhuji? Could you get my point that it is being given some different twist, right? Altogether different twist. But ये story में ये तो scene था ही नहीं कहीं, ये तो just एक simple एक session था, right? So अगर इस type से हम किसी image को ऐसे misleading उसको twist देके अगर net पे डाल देते हैं, तो वो किसकी कैटेगरी में आता है? वो मेल इंफॉर्मेशन की कैटेगरी में आता है, राइट? अब आप देखिएगा, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन को पकड़ना बहुत आसान है, मेल इन्फॉर्मेशन को पकड़ना बहुत मुश्किल है, और ये सबसे डेंजरस होता है, राइट? क्योंकि आपने इसको अलग से ट्विस्ट दे दिया, सच को आपने कई तरह से डिफाइन कर दिया, isn't it? So ये बहुत बड़ा गड़बड़ है. तो आप एक बार थोड़ा सा कंसर्न हो जाइए. आपके पास जितने भी व्हाट्सएप मैसेज आते हैं जिसमें कुछ हिंदू ग्रुप्स भेजते हैं, कुछ मुस्लिम ग्रुप्स भेजते हैं, ऐसे चलता रहता है, तो आप ध्यान से देखिएगा, वो इट इज नथिंग बट द मेल इंफॉर्मेशन. कई बार बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन भी गलत तरीके से प्रेजेंट की जाती है, राइट? कोई बात नहीं, इट्स ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो हम देखते हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट होती है, पैनिक क्रिएट होता है उससे सोसाइटी में, और फिर लोग उस पर एक्शन ले लेते हैं. एक्शन क्या होता है? तो फॉरवर्ड कर देते हैं, जिससे सब लोगों, मैक्सिमम लोगों तक पैनिक फैल जाता है, या फिर वो उस पर एक्ट करते हैं, यानी उस पर कोई काम करते हैं. हाँ, जैसे मॉब लिंचिंग कर दिया था लोगों ने कुछ मैसेजेस को पढ़ के, सोसाइटी को डैमेज हो जाता है. यस और नो? तो दिस इज द ब्रॉड फ्रेमवर्क, राइट? अगर मैं पतंजलि योग सूत्रा की बात करूं तो इट इज एग्जैक्टली रिलेटेड टू पतंजलि योग सूत्रा. लाइक देयर आर ए फ्यू मॉड्यूलेशंस इन द ह्यूमन माइंड, यानी ह्यूमन माइंड कुछ स्टेबल है, उसकी कुछ वृत्तियां हैं, तो मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करता है वो. यस, राइट? और जब मॉड्यूलेशंस होती हैं तो उसमें रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग भी होती है, और उससे भ्रम भी फैलता है, बैड मेमोरी भी क्रिएट होती है. ये किससे रिलेटेड है कि पैनिक इज क्रिएटेड. यस और नो? राइट? पैनिक इज क्रिएटेड. और जो थर्ड है वृत्ति सारूप्यम इत्राता, मतलब कि यू आइडेंटिफाई हमारा सेल्फ, यानी हमारा अंदर का जो माइंड है वो इससे आइडेंटिफाई करता है, यानी हम इसको सही मानने लगते हैं. यस और नो? और ये इससे रिलेटेड है बिल्कुल कि एक्शन जब होता है तो फॉरवर्ड करते हैं. फॉरवर्ड हम तब करते हैं जब हमें वो अपना सा लगने लगता है. यस और नो? सो पतंजलि योग सूत्रा का ये सूत्रा बिल्कुल डायरेक्टली जो आपका फेक न्यूज का जो फ्रेमवर्क है उससे रिलेटेड है. सी हाउ डिड पतंजलि न्यू 2000 years ago? बिकॉज तब तो फेक न्यूज नहीं थी, तब तो इल्यूजन नहीं था, तब तो रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं थी जितनी आज के दिन है, बट बिल्कुल फिट बैठता है आज के दिन, राइट?
पॉपुलेशन भी इतनी नहीं थी कि वो कई लोगों पे रिसर्च कर सके, मेमोरी ऐसा नहीं था कि कोई बहुत ज्यादा बैड इंस्टांसेस होते कि लोगों की मेमोरी बैड क्रिएट हो जाती हो, राइट। बट अगर एंशिएंट स्क्रिप्चर्स को आप देखिए तो उनके अंदर आज के भी सब प्रॉब्लम्स का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, राइट। सो इसको हम देखते हुए अभी हम वेरी क्विकली हम लोग डिस्कस करते हैं कि 7 टाइप की मिस और डिस इन्फॉर्मेशन होते हैं। ये एक एक करके अगर हम एग्जाम्पल से देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। थ्योरी पोर्शन बस इसके बाद खत्म होने वाला है, देन वी विल प्रैक्टिस ऑन द नेट, राइट। कुछ टूल्स को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन का टाइप है वो है सटायर, यानी पैरोडी। जैसे आपने देखा होगा आज तक पे आता है सो सॉरी बोल के, राइट। अब वो क्या है, दैट इज ए पर वो हंसाने के लिए है, एंटरटेनमेंट करने के लिए, उसका कोई एक उसकी इंटेंशंस बुरी नहीं है, हाँ, हार्मलेस है। तो पतंजलि का जो सूत्र है यहाँ पे आता है कि ये जो मॉड्यूलेशन है हार्मलेस भी हो सकती है और हार्मफुल भी हो सकती है, राइट। तो ये मॉड्यूलेशन जो है वो है हार्मलेस की कैटेगरी में। देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया बन गया लाइम ऑफ इंडिया, टाइम्स नाउ बन गया टाइम्स हाउ। सो अगर इस लोगो से कुछ आता है तो आप डेफिनेटली बिलीव करेंगे। इतना लोग पढ़ते नहीं है कि एन की बजाय एच लिखा हुआ है, हाँ, तो पैरोडी अकाउंट्स होते हैं ये। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो मामला थोड़ा सा सीरियस होने लगता है, राइट। फिर आता है इम्पोस्टर। इम्पोस्टर में फोटोशॉप पिक्चर होती है। कैसे, यहाँ पे जो सोर्सेज उन्होंने बता रखे हैं BBC, CNN, ये बिल्कुल ओरिजिनल सोर्सेज हैं, लोगो सही है इनका, लेकिन इसके नीचे जो इंफॉर्मेशन जो दे रखी है वो बिल्कुल झूठ है। इन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी वर्ल्ड में सबसे 4th नंबर की करप्ट पॉलिटिकल पार्टी है, जो कि पूरी तरह फेक न्यूज है, राइट। लेकिन BBC के लोगों के नीचे दिया हुआ है, तो इसीलिए इसको इम्पोस्टर कंटेंट में हम लोग मानेंगे। फिर आता है फॉल्स कंटेक्स्ट। फॉल्स कंटेक्स्ट में देखिए ये जो ट्वीट्स आई थी, उन्होंने बोला था कि ये पुलवामा में जो हमारे बेचारे आर्मी जवान मारे गए, उनको उनकी फोटो दिखा के कि 26/11 की तरह 14 जो फरवरी भी शहीदों के नाम से जाना जाएगा, राइट, ओके। लेकिन अब जब पता किया गया तो ये जो हमारा 2010 में दंतेवाड़ा में अटैक हुआ था, नक्सल्स ने किया था, CRPF के 76 लोग मारे गए थे, ये उनकी फोटो थी, राइट। तो अब तक आप जो देख रहे हो टाइप्स में, उसमें सच का देखो कुछ ना कुछ इनपुट तो है, लेकिन वो सच यहाँ पे फॉल्स कंटेक्स्ट में, गलत संदर्भ में पेश किया गया है, राइट। तो फॉल्स कंटेक्स्ट भी एक टाइप की मिस इन्फॉर्मेशन है। फिर आता है फैब्रिकेटेड कंटेंट। इसमें पूरा ही झूठ रहता है, इसमें 1% भी सच नहीं रहता। ऐसी इमेजेस आई थी और ट्विटर पे कांग्रेस वालों ने डाली थी कि बुर्ज खलीफा ने राहुल गांधी से इंप्रेस होके अपने टावर पे उसकी फोटो को लगाया है, राइट। लेकिन जब पता किया गया तो वो फोटो जो लगी थी दैट वाज मेड यूजिंग ए ऐप, ब्यूगो ऐप है, उस पर आप अपनी भी बना सकते हो, बुर्ज खलीफा पे अपनी फोटो आप डाल सकते हो। लोगों ने इतना देखा नहीं, कांग्रेस वालों ने इसको उठा के ट्वीट कर दिया, राइट। इसमें देखिए कि सारे का सारा ही झूठ है। फैब्रिकेटेड कंटेंट में 100% झूठ है, कहीं से भी कोई 1% भी सच नहीं है। अभी पिछले जो फोटोज दिखाई थी इसमें कुछ तो सच था, हाँ, कुछ तो सच था, चाहे इसमें BBC तो सच है, CNN तो सच है, लेकिन इसमें तो टोटली झूठ है। दिस इज फैब्रिकेटेड कंटेंट। सो अब आगे आते हैं मैनिपुलेटेड कंटेंट में, मतलब कंटेंट के साथ जब छेड़छाड़ करके कुछ नया सच बना देते हैं, जो कि झूठ से भी ज्यादा बदतर होता है। तो आपने देखा होगा टिकटॉक पे केजरीवाल का एक वीडियो आया था जिसमें ऐसा था कि वो शायद शराब पी रखी है, उन्होंने कुछ हनशन बोल रहे हैं, राइट। सो जब इन्वेस्टिगेट किया गया देन इट वाज फाउंड दैट कि जो वीडियो था वो जेन्युइन था, लेकिन उसको डेलिबरेटली स्लो डाउन कर दिया था सो दैट ऐसा लगे कि उन्होंने शराब पी हुई है, राइट। सो फिर उसको चलाया और उसको वायरल कर दिया और लोगों ने उसको क्या किया, ट्वीट भी कर दिया, बट ये एक मैनिपुलेटेड कंटेंट में आता है। फिर मिसलीडिंग कंटेंट। मिसलीडिंग मींस सच को एक दूसरा नया रंग देके आप अगर पेश करते हो। तो किसी विक्रम हेगड़े ने बोला कि इवन गल्फ न्यूज नोज राहुल गांधी इज कॉल्ड पप्पू इन इंडिया, ओके। सो ये गल्फ न्यूज की जो अखबार लगाया है और उसमें हाउ पप्पू लेबल, ये बिल्कुल सही है, एकदम सही न्यूज है, लेकिन सच को कैसे घुमाया गया वो देखिए। राहुल गांधी ने बोला कि जो पप्पू लेवल मुझे मिला है 2014 में, उसने मुझे और ज्यादा
it has made me, more strong, more wise politically, right? And it was the changing turning point in my life, and I learned it so much, right? So he said, I appreciate attacks from my opponents, I learn from them, right? तो देखिए कंटेक्स्ट क्या था, कंटेक्स्ट क्या, संदर्भ ये था कि राहुल गांधी ने कहा कि पप्पू ने, टैग ने मुझे बहुत कुछ लाइफ में दिया है, बहुत कुछ सिखाया है, और ये जो ट्वीट की जा रही है वो ये बोल के की जा रही है कि गल्फ न्यूज न्यूज़पेपर है, उसको भी पता है कि राहुल गांधी को इंडिया में पप्पू बोला जाता है. सी नाउ दिस इज अ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, राइट? सो आपको इस टाइप की कुछ फेक न्यूज जरूर सामने आएंगे और 7-8 कैटेगरीज में आप उनको डिवाइड कर सकते हो, राइट? तो क्या करें फिर, बड़ी गड़बड़ हो गई है तो आपको क्या करना है, आप वेरीफाई करो, वेरीफाई करो और वेरीफाई करो, राइट? तो वेरीफाई करें कैसे? ओके, तो मैसेज कोई भी आपके पास आता है तो 3 फॉर्म में आ सकता है, या तो वो एक रिटर्न मैसेज होगा, या फिर इमेज की फॉर्म में आएगा, या वीडियो की फॉर्म में आएगा. एक चौथा फॉर्मेट और है साउंड की फॉर्म में, राइट? आप प्लीज ध्यान से सुने कि साउंड जो फाइल्स हैं उनको हमारे लिए उसको वेरीफाई करना इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, राइट? बिकॉज मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं, वो कुछ अपनी साउंड रिकॉर्ड करके भेज देते हैं एंड वो बात नहीं बन पाती. फिर इसलिए इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के लिए या फॉरेंसिक साइंस लैब के लिए वो बड़ा इजी होता है, हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए वी डोंट डिस्कस दैट, राइट? सो हम यहाँ पे अपने आप को टेक्स्ट, इमेज और वीडियो तक सीमित रखेंगे. सबसे पहले हम टेक्स्ट की बात करते हैं. ये मैसेज आपके पास भी आया होगा 22 मार्च के बाद, जब हमने हेल्थ वर्कर्स के लिए थालियां बजाई थी, और तालियां बजाई थी खूब, पूरा जबरदस्त तरीके से इंडिया ने. उसके अगले दिन एक मैसेज फ्लोट हुआ कि जो भी ये तालियां वालियां बजी थी एक टाइम पे, उसकी वजह से एनवायरनमेंट में इतनी अच्छी वाइब्रेशन गई है कि नासा के SD-13 सैटेलाइट ने एक इस वाइब्रेशन को डिटेक्ट किया है, और उसने ये नोट किया है कि इस वाइब्रेशन से कोरोना का जो स्ट्रेंथ था वो कम हुआ है, असर कम हुआ है, राइट? अब दिखने में बहुत ही बढ़िया न्यूज लग रही है और बिलीव करने को भी मन कर रहा है. हाँ, इंडियन नॉलेज इज सो ग्रेट. लेकिन और ये पॉपुलर भी बहुत हुआ. अमिताभ बच्चन ने भी इसे ट्वीट किया, सोनू निगम ने भी ट्वीट किया. बाद में पता चला ये फेक मैसेज था. हाँ, तो कैसे पता चलेगा? आपके पास आ जाए मैसेज, ये हाउ वुड यू नो? तो लेट मी टेल यू दिस, इट्स वेरी इजी टू नो द ऑथेंटिसिटी. किसी भी टेक्स्ट मैसेज को आप देखिए, ध्यान से पढ़िए पहले तो उसको, राइट? ये जितने भी मैसेजेस होते हैं, प्राउड टू बी इंडियन, तालियां बजाना और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगना, और ये कैपिटल्स में और बोल्ड में, आप समझ लेना कि ये 20% तो फेक की तरफ इशारा करते हैं. यस और नो? क्योंकि सच्चाई को इतना जरूरत नहीं है जो है श्रृंगार करने की, isn't it? लेकिन फिर भी पता कैसे चलेगा? आप क्या कीजिएगा, कोई भी एक सेंटेंस इसमें से उठा लीजिए, या एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स उठा लीजिए. फॉर एग्जाम्पल, द कॉस्मिक लेवल साउंड वेव्स जनरेटेड, राइट? इसको मैं गूगल में जाके सर्च करता हूँ, और लेट अस सी कि क्या पता चलता है मुझे. अगर मैं गूगल यहाँ पे खोल लेता हूँ, और यस, आई होप ये विजिबल होगा आपको स्क्रीन, गूगल का सामने साइट. Yes sir, visible. The cosmic, let us see what was the message. The cosmic level sound waves generated, right? Okay, this was our just a minute. Google Chrome, and yes, we are sharing it. Just a minute. Okay. Yeah. Okay. अगर आप इसको डबल कोट के अंदर सर्च करते हैं गूगल पे जाके, तो देखिए आपको मिल जाएगा. सबसे पहला लिंक आप देखिए, फैक्ट चेक, नासा सैटेलाइट डिड नॉट शो एनी कोरोना वायरस रिट्रीट. ठीक है, अब ये कैसे हुआ? जब भी किसी मैसेज का में हिंदी में आए या चाहे इंग्लिश में आए, आप उसको सेम टू सेम सीक्वेंस में एक सेंटेंस उठा लें, या सेंटेंस बहुत लंबा है तो कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स उठा लें. उसको अगर गूगल में आप डबल कोट्स के अंदर सर्च करेंगे, तो जिस भी साइट पे वो मैसेज होगा उस सीक्वेंस में वो वहां से रिजल्ट्स दिखा देगा, राइट? अब ये कह रहे हैं कि 35 रिजल्ट्स हैं. सबसे पहला है इन आउटलुक इंडिया का. अब ये मैसेज तो ऑलरेडी आपके लिए किसी ने फैक्ट चेक किया हुआ है कि ऑलरेडी ये
डिबंक किया जा चुका है कि इट इज ए फेक मैसेज, राइट। आप इसको पढ़ भी सकते हैं। आउटलुक इंडिया एक अच्छी रिस्पेक्टेड मैगजीन है, इस पे विश्वास ना करने का कोई कारण नहीं बनता है। और बाकी भी देख लीजिए, नॉट एट ऑल, नासा डिड नॉट डू इट, वन इंडिया, तो कई लोगों ने फैक्ट चेक आपके लिए किया हुआ है, राइट। इंडिया टाइम्स ने भी, ये सारी रिस्पेक्टेड वेबसाइट्स हैं, ठीक है। और कोई कहता है अगर आपको कि फलाने न्यूज़पेपर में आया था, राइट, ओके, तो न्यूज़पेपर की साइट का नाम, एक साइट कमांड है, साइट कॉलन और फिर न्यूज़पेपर का नाम डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल ट्रिब्यून में आया था, मान लीजिए tribuneindia.com, आप सर्च करेंगे तो यहाँ से पता चल जाएगा नो रिजल्ट फाउंड फॉर दिस इन ट्रिब्यून। इसका मतलब ट्रिब्यून में कभी भी ऐसी कोई खबर नहीं छपी है, राइट। सो टेक्स्ट मैसेज में इतना ही है, दैट्स ऑल, राइट। आप डबल कोट्स में सर्च करें आपको, और उसके बाद आपको खुद रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ आपको ये सिमिलैरिटी तक लेके जा सकता है, उसके बाद आपको देखना है इसमें, राइट, ओके। और फिर हम आते हैं अपनी एक बार प्रेजेंटेशन पे दोबारा आते हैं, एंड ओके, यस, oh yes, this one is okay. What's happening? अब इमेजेस पे आते हैं। हाँ, अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, बिकॉज यहाँ से मामला थोड़ा सा डिटेल में भी हो जाएगा और इंटरेस्टिंग भी। इमेजेस आपके पास कुछ हैं जो आपको वेरीफाई करनी है, तो हम रिवर्स इमेज सर्च फंक्शन यूज करेंगे। हाँ, अब ये क्या होता है, इसके लिए फिर हमें एक बार हमें जाना पड़ेगा गूगल पे, एंड वहां से हम इसको देखते हैं। इज इट विजिबल राहुल? हाँ, यस सर, ओके, ठीक है। तो अब हम इमेजेस को वेरीफाई करने जा रहे हैं। इमेजेस आपके पास दो तरीके से हो सकते हैं, या तो आपके कंप्यूटर पे हैं, यानी किसी ने आपको व्हाट्सएप भेजा है तो आपने डेस्कटॉप पे उसको कॉपी कर लिया है, और या कहीं किसी वेबसाइट पे, किसी ब्लॉग पे कोई इमेज है और वो कह रहे हैं कि ये इमेज इस चीज की है, लेकिन आप वेरीफाई करना चाहते हैं कि वाकई में ये इमेज उसकी है या नहीं। तो मैं दोनों तरीकों पे आता हूँ। पहले मैं आपके जो डेस्कटॉप के ऊपर इमेज है उसको वेरीफाई करके बताता हूँ। तो images.google.com खोल लीजिए आप, यहाँ कैमरे पे क्लिक कीजिए, अपलोड इमेज, एंड यहाँ पे फिर आप इसको अपलोड जब करेंगे, नो फाइल चूजन, एंड ओके, चूज फाइल। अब मान लीजिए मेरे पास कोई इमेज है, राइट, ये इमेज मैंने इसमें अपलोड कर दी है जो वेरीफाई करनी है, और ये इमेज सामने देख रहे हैं आप। यस, मेरे को किसी ने भेजी थी ऐसा बोल के कि दून स्कूल देहरादून की फोटो है, राइट। मैंने इसको जब गूगल में अपलोड किया तो इसने ऑटोमेटिकली इसको क्या किया, एक टैग दे दिया, हाँ, जिसको बोला स्टूडेंट, राइट, ओके। आप नीचे आ जाइए, इससे सिमिलर इमेजेस ये आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। तो अगर इसमें कोई इमेज इस जैसी मिल जाती है आपको, तो उस पर क्लिक कर दीजिए, तो पता चलेगा वो किसकी फोटो है। नहीं तो आप पहले लिंक पे आ जाइए। सबसे पहले लिंक पे ये इमेज है और ये बता रही है कि ब्रेव्स नासिक, ये वहां की जो है इमेज है। आप इसको क्लिक कर लीजिए, यहाँ पे उनकी वेबसाइट पे क्लियर है ये कि ये फोटो जो है देखिए बिल्कुल सेम टू सेम ब्रेव नासिक फीस रिव्यू व्हाटएवर, राइट, ठीक। मेरे को क्या बोला गया था कि ये देहरादून स्कूल की इमेज है, राइट, ऐसा नहीं। तो कई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पे आरोप लगता रहा है पहले कि वो लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को, अच्छे वाले बिल्डिंग्स हैं, उनको अपने फोटो खींच के अपनी बिल्डिंग्स को अपनी वेबसाइट पे शो कर देते हैं। हाँ, ये ऐसा होता रहा है पहले। अगर तो किसी को उसकी ऑथेंटिसिटी जाननी है तो जस्ट उसको एक बार डाउनलोड करें और उसको फिर अपलोड कर दें, सो दैट वो वहीं पे ले जाएगा जहाँ पे एक्चुअल उसकी फोटो है, राइट। अब इसका एक पहलू और हो सकता है कि जो इमेज आपने जो है वेरीफाई करनी है वो ऑलरेडी नेट पे कहीं है। फॉर एग्जांपल मैं अपनी वेबसाइट पे आता हूँ, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मान लीजिए ये वेबसाइट जैसे अभी खुलने वाली है, तो उसमें कोई इमेज मुझे दिखती है
और उस इमेज, ये इमेज मान लीजिए किसी ब्लॉग पे है और कहीं है, मुझे वेरीफाई करना है कि ये कहाँ की इमेज है, मुझे अभी पता नहीं है, राइट। वेबसाइट खोलने में थोड़ा टाइम लग रहा है बिकॉज आजकल एडमिशंस की इशू है, तो इस करके थोड़ा वेबसाइट हैवी चल रही है। बट अभी जो भी इमेज आपके सामने अभी ये दिखाएगी, उस इमेज पे आप राइट साइड पे क्लिक कर दीजिएगा, राइट। और राइट साइड पे क्लिक करके आपको एक ऑप्शन दिखेगा जो कि गूगल रिवर्स इमेज सर्च में आएगा। आई थिंक आई मस्ट ओपन सम अदर वेबसाइट बिकॉज टाइम थोड़ा सा लग रहा है इसमें। हाँ, ओके, कोई बात नहीं सर। हाँ, यस, इट इज देयर। अब ये मान लीजिए इमेज कहीं किसी ब्लॉग पे मैंने देखी, मुझे पता नहीं कहाँ की है, तो मैं क्या करूंगा, इसके राइट साइड पे क्लिक करूंगा। एक मिनट, आई थिंक ये विजिबल है। हाँ राहुल? यस 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 सर। ओके, राइट, ठीक है। विजिबल। तो ये इमेज के मैं राइट साइड पे क्लिक कर लूंगा। क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए सर्च गूगल विद दिस इमेज का ऑप्शन आएगा, राइट। अब ये मेरे तो लैपटॉप में एक मैंने छोटा सा एक्सटेंशन डाल रखा है ब्राउजर पे, इसलिए तो दिख रहा है, आपके उसमें नहीं दिखेगा ये। हाँ, तो इसको करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप गूगल पे जाएं और यहाँ पे आप एक एक्सटेंशन डाउनलोड करें और उस एक्सटेंशन का नाम है सर्च बाय इमेज एक्सटेंशन फॉर क्रोम, राइट। ये दिख रहा है आपको सामने कि जो भी लिंक आए और आप उसको क्लिक कर दीजिएगा, और जब एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाए, ऐड टू क्रोम है जैसे, तो ऐड टू क्रोम होते आप इसको दबाएंगे तो ये यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, राइट। और फिर आप किसी भी नेट पे किसी भी इमेज पे जाएंगे और उसको क्लिक करेंगे एंड देन यू विल कम टू नो कि ये कहाँ से है। मैं एक आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ मैं, सर्च गूगल विद दिस इमेज, राइट। इसको दबाते ही आपके राइट साइड में एक विंडो खुल जाएगी और जो आपने अभी अपलोड वाला काम लैपटॉप से किया था अब वो बच जाएगा आपका, राइट। तो ये देखिए, ये बता रहा है कि ये आपकी इमेज है और इससे सिमिलर इमेजेस ये दिखा रहा है। सबसे पहली इमेज को देख लेना आप, ये मुझे क्लियरली बता रहा है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार की इमेज है, किसी और इंस्टीट्यूशन की नहीं है, राइट। इसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। नाउ इट इज वेरी क्लियर, राइट। सो आप अगर कोई फोटो किसी के नाम से भेजता है, किसी प्लेस के नाम से भेजता है, तो कम से कम एक बार गूगल पे सर्च करें, राइट। तो आपको पता चल जाएगा वही फोटो है या किसी और की फोटो है ये, और उसके नाम से उसने गलत नाम से डाल रखी है, राइट। तो इमेज वेरिफिकेशन में इतना ही है, दोनों हो चुके हैं कि डेस्कटॉप पे इमेज है वो अपलोड कर दीजिए, वेरीफाई हो जाएगी। वेबसाइट पे या कहीं किसी ब्लॉग पे है, राइट क्लिक कीजिए, वहां से वेरीफाई हो जाएगी। अब तीसरा इशू आता है कि जब भी आप गूगल पे सर्च करेंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको गूगल उस इमेज को वेरीफाई कर दे या वैसी कोई इमेज लेके ही आए। नो, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज गूगल ऑल्सो हैज लिमिटेड डेटाबेस। So what to do then? So we will download and install one more extension on browser that is Chrome. और वो क्या करेगा आप देखिए, अगर मैं इस इमेज को राइट साइड क्लिक करता हूँ तो देखिए एक रिवर्स इमेज सर्च यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो ऑल सर्च इंजन यानी गूगल सर्च, बिंग, यांडेक्स, किनाई, बाइडू, ये सारे के सारे इकट्ठा सर्च करेगा। आप देखिए जो यांडेक्स है इसके पास यूरोप का बहुत अच्छा कलेक्शन है। बाइडू है, ये चाइना का है, चाइनीज इमेजेस सारी मिल जाएंगे आपके। गूगल चाइना में ऑपरेट नहीं करता है, इस करके आपको वहाँ चाइनीज इमेज और गूगल का कोई लिंक नहीं है, राइट। सो आप ये रिवर्स इमेज सर्च अगर आप एक ब्राउजर एक्सटेंशन डाल लें और यहाँ से सर्च करें तो सारी की सारी विंडोज 5 इकट्ठी खुल जाएंगी और ये सारी जो जितनी भी इमेज आपने डाली थी बिल्कुल वैसी की वैसी वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आपको जाके देखना है कि उन इमेजेस में से आप वाली इमेज कौन सी है, राइट। तो अगर आप यहाँ पे गूगल में अगर सर्च करेंगे, सॉरी दिस इज नॉट इमेज, इट इज सिंपल गूगल में जाके आप सर्च करें रिवर्स इमेज सर्च एक्सटेंशन, राइट। या आप क्लिक कर दीजिए, फर्स्ट लिंक जो भी आएगा इस पे, एंड उस पे आप इसको
ऐड टू क्रोम कर दीजिए। जब ऐड टू क्रोम हो जाता है तो ये यहाँ पे इस तरीके से आ जाता है। इसको बोलते हैं रेव आई, रिवर्स इमेज सर्च, राइट। ओके, अब हम इसको अब इसको हम खोल इसलिए नहीं सकते हैं बिकॉज वो 5 इकट्ठी विंडोज खोल देगा और फिर कंप्यूटर थोड़ा इस मोमेंट पे थोड़ा सा हैंग हो जाने के चांसेस है बिकॉज इमेजेस हैवी होती है। बट जब आप अपना रियल में फैक्ट चेकिंग करोगे इट विल रन स्मूथली, डोंट वरी अबाउट दैट। फर्क इतना ही है कि ये केवल गूगल को ना सर्च करके ये इकट्ठे 5 या 6 सर्च इंजन को सर्च करेगा, तो आपकी जो है एरिया, आपका इंफॉर्मेशन बढ़ जाती है, राइट। गूगल सॉरी रिवर्स इमेज सर्च में इतना ही है। एंड वेरी क्विकली देन वी विल कम ऑन टू द वीडियो पार्ट ऑफ इट, कि वीडियो हम वेरीफाई कैसे करेंगे, राइट। तो आपको और हमारे ये जो भी लिसनर हैं यहाँ पे, इनको इंटरेस्टिंग लग रहा है सुनना, आई होप। हाँ जी सर। राहुल, हाँ, ओके, नाउ वी हैव 105 participants, very good, I'm so happy, good, it means it's interesting, right। so देखिए फेक न्यूज अब जो आती हैं वो टेक्स्ट में इतनी ज्यादा नहीं। सर एक मिनट रुक जाइएगा। जो भी लोग हाथ रेज कर रहे हैं प्लीज अपने क्वेश्चन एंड आंसर बॉक्स में डाल दीजिए। एक बार सर का लेक्चर खत्म होने के बाद हम सारे क्वेश्चंस लेंगे। क्यों सर, सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही, एग्जैक्टली, यस, बिल्कुल सर। आप चिंता ना करें, मैं अपना आपको फोन नंबर, मोबाइल वगैरह और ये सब मेल वगैरह सब देके जाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। ओके सर, थैंक यू। तो अभी हम मैं जो कह रहा था वो ये है कि अब टेक्स्ट मैसेजेस उतना नहीं आते बिकॉज लोगों के पास पढ़ने को टाइम नहीं रहा, राइट। ज्यादातर मैसेज आते हैं इमेजेस का, और जैसे जैसे बैंडविड्थ हमारी बढ़ती जा रही है, ब्रॉडबैंड अब इजी है, वीडियो मैसेजेस बहुत आने लगे हैं अभी, राइट। तो अगला जो हम स्टेप ले रहे हैं वो है वीडियो वेरिफिकेशन का, कि कोई वीडियो आपके पास आए और उसको बोला जाए कि ये तो देखो ये वीडियो यहाँ का है, हाँ, और आप उसको पढ़ के मान लेते हो कि हाँ अरे ऐसा ही है, फिर अपने ओपिनियन बना लेते हो आप, या आगे फॉरवर्ड कर देते हो, तो आपकी वजह से 150 लोग और उससे इन्फेक्ट हो जाते हैं, राइट। तो इस चीज को जानने का तरीका क्या है, तो अभी हम क्या करेंगे, एक वीडियो देखेंगे यहाँ पे बहुत बढ़िया सा, और आप ध्यान से देखिए, बताइएगा कि ओके, आप स्वयं उसको देखेंगे। मैं यहाँ पे एक वीडियो आपको शेयर कर रहा हूँ, ये मेरे पास आया था बहुत पहले, और जब रफाल जो हवाई जहाज है उस पर जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, देन ये सर्कुलेट हुआ था व्हाट्सएप पे बहुत, कि देखिए कांग्रेस वाले इसके बीजेपी वालों के पीछे पड़े हुए हैं, सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, रफाल कितना अच्छा एयरक्राफ्ट है, देखिए ये वीडियो उन्होंने सर्कुलेट किया था, राइट। तो वो मैं यहाँ से उसको प्ले कर रहा हूँ अभी, आप उसको ध्यान से देखिएगा। ओके, इसकी आवाज अभी सुनाई नहीं दे रही है, लेट मी एडजस्ट। ओके, select a microphone, select a speaker, same as system, okay। आवाज सुनाई दे रही है राहुल? यस सर। ओके, ध्यान से देखिए इस वीडियो को। सर वीडियो विजिबल नहीं है, क्या नहीं है? ओके, एक मिनट, एक सेकंड, I'll stop share and then again play वीडियो। अब विजिबल है? जी सर जी।
ओके, दिस वाज द वीडियो, राइट? आपने देखा अच्छे से इसको? Yes. जी सर। हेलो, Yes, sir. स्पीकर रियल टाइम, am I audible, Rahul? Right, sir. Audible. Yes sir, audible. हाँ, तो ये वीडियो आपने देखा यहाँ पे, इसको देखने के बाद आपका क्या विचार है इसके बारे में? आप अब ये मत सोचिएगा कि मैंने यहाँ इसको शेयर किया है तो ये फेक ही होगा, है ना? एक तो मैंने वो जैन साधु वाली इमेज भी शेयर की थी, लेकिन वो तो असली थी। तो आपका क्या विचार है यहाँ पे कि ये रफाल लग रहा है आपको या नहीं? सर इसका जो साउंड है और जो वीडियो है सर, वो मैच नहीं हो रहा है कहीं पर, कई जगह पर। वेरी गुड। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने जैसे बहुत अच्छे से किया है भारत जी, शुरू से आखिर तक वीडियो को देखिए आप अच्छे से, हाँ, ध्यान से एकदम एक एक चीज को नोट करते जाएं। आपने देखा शुरू में एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, हाँ, व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो एयरपोर्ट्स पे जब ऐसे इस टाइप का लैंडिंग और ये सब कुछ होती है तो लोग इतना नजदीक नहीं खड़े होते, बिकॉज इंजन जो होता है वो सक इन कर लेता है अंदर, राइट? उसके जब इंजन स्टार्ट हो गया तो आसपास लोग नहीं रहते। अच्छा, दूसरा ये जो ये आवाज आ रही थी, जब वो बिल्कुल स्टेशनरी था तब भी वैसे आ रही थी, जो बादलों को चीरती हुई आवाज, हाउ इज इट पॉसिबल, राइट? तीसरा ये कि रफाल एक फाइटर एयरक्राफ्ट है, राइट? तो उसको अगर आप नेट पे जाके देख लो, अगर खुद आप देखें, मान लीजिए अगर मैं ये स्क्रीन आपकी यहाँ पे 1 मिनट के लिए शेयर करूं और अगर आप देखें कि रफाल कैसे दिखता है, हाँ, रफाल, तो देखिए आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब ये रफाल की इमेजेस तो ये हैं, कहीं भी वो एयरक्राफ्ट आपको रफाल के नजदीक लगा, उसमें कोई तो मिसाइल नहीं है, कोई जो है उसके लिए साइड में जो ये गन्स होती हैं वो भी नहीं है, और एक जैसे कुछ सर्कस वाले एयरक्राफ्ट होते हैं जैसे मल्टी कलर्स में, और रफाल का मेन काम फाइटिंग करना है, वो एक्रोबैटिक्स करना नहीं है, राइट? चलिए, ये तो हमने अपने कॉमन सेंस से इस बारे में थोड़ा पता किया कि भाई ये रफाल नहीं है, राइट? लेकिन असली फैक्ट चेकिंग जब होती है, असली सच्चाई का पता तब लगता है जब बिल्कुल आप एक एक सबूत के साथ पेश करें, इजंट इट? तो फैक्ट चेकर का काम पुलिस वाला होता है, सीधी सी बात है। अब जज के सामने जाके वो ये नहीं कह सकती कि साहब हमें लगा इसके हाव भाव से इसने चोरी की है, राइट, किसी व्यक्ति ने, ऐसे नहीं। तो उसके आपको कागज के सबूत, बिल्कुल रियल सबूत चाहिए। अब वो कैसे पता चलेंगे? ओके, अब हम देखते हैं कि इसको असली से हम वेरीफाई कैसा कर सकते हैं। हाँ, ओके, तो हमने क्या किया, अगर आप इसको मैं यहाँ से न्यू शेयर पे ले आऊं, तो मैंने एक चीज की है यहाँ पे कि इसकी मैंने एक किसी भी पोर्शन की एक इमेज निकाल ली है, राइट? आपने देखा होगा ये व्यक्ति जो शुरू में दिखाई दे रहा था, मैं इसकी फोटो आपको दिखा रहा हूँ अभी, सबसे पहले वाले फ्रेम पे ये था ना, यस और नो? ये व्यक्ति का आपको दिखाता है। हाँ जी सर। कोई भी इमेज आप निकाल लो पूरे वीडियो में जहां पे आपका पीछे वाला एरिया आपको अच्छे से दिख रहा हो, राइट, इसमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हो, राइट? आपने ये निकाल लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, फिर हम इसको गूगल पे जाके रिवर्स इमेज सर्च करेंगे, राइट? कैसे? तो गूगल पे हम एक बार दोबारा जाते हैं और फिर इमेजेस पे आते हैं, गूगल इमेजेस पे, एंड आई थिंक इट इज विजिबल टू यू। एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो इमेज जो ली थी हमने वीडियो में से एक निकाली थी, उसको अपलोड करते हैं किस पे? गूगल पे, राइट? ओके, अपलोड करते ही अपना काम शुरू कर रहा है। ये देखिएगा, ये बोलेगा देखिए ये आपने इमेज अपलोड किया था मेरे अंदर, और इसको सर्च कर रहा है। ये थोड़ा सा अंदाजा लगा रहा है, ये बोलता है कि ये घास है, क्योंकि ज्यादा पोर्शन घास का है। एनीवे, कोई बात नहीं, इसको 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। फिर नीचे आइए, विजुअल सिमिलर इमेजेस हैं, इसमें हमें कहीं नहीं मिल रहा है, और यहाँ पे आप आएंगे तो भी आपको शायद ना मिले। अब इसमें शेयर चैट पे रफाल खबरें और राजनीति और रफाल के 100 बेस्ट वीडियोस, 100 बेस्ट इमेजेस वीडियो रफाल, नहीं, ये तो बात बन नहीं रही ना, यस नो? ये लिंक्स सारे के सारे कह रहे हैं कि तो रफाल है, लेकिन आपने जो असली इमेज देखी रफाल की वो उससे मैच नहीं कर रही है, यस नो? और आपको लग रहा है कि पक्का वो है।
अब तो बड़ी गड़बड़ हो गई है, अब क्या करें? ओके कोई बात नहीं, आप इस पे जाइए, फिर यहाँ पे आप रफाल लिख दीजिए, क्योंकि गूगल जो इमेज सर्च करता है वो दो तरीके से करता है, जो एक तो इमेज आप अपलोड करते हैं उससे, दूसरा जो आप कीवर्ड उसके बगल में डालते हैं उससे, राइट? तो रफाल आप इसको अपने हिसाब से यहाँ चेंज कर लीजिए, और फिर अगर आप इसको सर्च करेंगे तो एक इमेज तो आपको मिल जाएगी यहाँ पे, ये देखिए, राइट, ये वाली, ठीक। इसको आप क्लिक कर दीजिए और इसको ओपन कीजिए। कहाँ से आई आपके पास ये इमेज? हाँ, ये इमेज जिस भी वेबसाइट पे है ये आपको वहां पे दिखा देगी, और इसको आप जब खोलेंगे इमेज को, ओपन लिंक इन ए न्यू विंडो, ओके, देखिए क्या आया सामने, फेक न्यूज अलर्ट, वीडियो ऑफ रिमोट कंट्रोल टरबाइन जेट शेयर्ड एज रफाल, यस और नो? थोड़ा हिंट मिल गया आपको? हाँ, इस वेबसाइट पे आप चले जाइएगा तो आपको पूरे का पूरा इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कि ये रफाल है या नहीं, और क्यों नहीं है रफाल, ये सारे पूरे अच्छे से इसका इसने जो है डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। जैसे FIR लिखते हैं ना पूरी अच्छे से बढ़िया से, जिसको पढ़ के आप जज कर सकते हो कि हाँ ये रफाल का है या नहीं है। तो ये तो लोगों ने आपके लिए ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है, ओके। फिर एक तरीका और है, मान लीजिए, अच्छा इसको मैं बंद कर देता हूँ अभी, और इसको भी मैं लेट मी, ओके, हाँ। अब मान लीजिए हमें ये यहाँ भी कोई इमेज नहीं मिली है, हाँ कोई इमेज नहीं मिली है, नीचे भी हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला है। just a minute please, just a minute, let me come back to my original this thing। हाँ, इसको इग्नोर कर दीजिए जितनी भी इमेजेस हैं, बिकॉज हमेशा ये आपको नहीं दिखाएगा, क्योंकि इसके डेटाबेस में अगर है तब तो दिखा देगा, और अगर नहीं है तो नहीं दिखाएगा। लेकिन फेक तो फिर भी हो सकती है वो, और नीचे भी ये नहीं दिखा रहा है, ये तो पुरानी खबरें हैं कि भाई हाँ 100 बेस्ट वीडियोस एक्सेट्रा, ओके कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आ जाइए आप, रफाल फेक, आपको ये शक है कि भाई ये रफाल का वीडियो फेक है, तो आप इसको कीवर्ड को थोड़ा चेंज कर दो। फेक डालते ही आप क्या करेंगे, सर्च करेंगे जब, तो देखिए so many things will come, और इसमें भी आपको देखो अभी भी नहीं मिल रहा है आपको, अभी भी नहीं मिल रहा है आपको ये चीज। तो फिर आप इसको क्या करो, रफाल फेक वीडियो लिख लो, इससे शायद बात बन जाए। यस, अब बात बन गई। इंडिया टुडे फैक्ट चेक, वायरल वीडियो क्लेमिंग टू बी रफाल जेट इज एक्चुअली ए टरबाइन जेट, यस और नो? देखा आपने? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये क्या है कि ऐसा नहीं है कि डिजिटल टूल सीख लिए और एक झटका मारा और चलो जी ये फेक है और या वेरीफाइड है, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना? तो आपको ये वाले जो कीवर्ड्स हैं अपने ध्यान से बड़े हिसाब से चूज करने पड़ेंगे, और ये कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है कि हम क्या इसमें ये लिखते हैं, और उसके हिसाब से इसकी सर्च चेंज होती जाती है फिर। इसलिए आप अपने मैक्सिमम कीवर्ड्स यूज करके देख लीजिए, और आपने मान लीजिए 10 कीवर्ड यूज किए, हर एक पे आपको नीचे देखना पड़ेगा कि आपके सपोर्टिंग वेरिफिकेशन उसमें है या नहीं, राइट? तो ये जो मैंने वीडियो वेरिफिकेशन किया, ये किया गूगल इमेजेस के थ्रू, राइट? यानी वीडियो को प्ले किया, उसमें से एक स्क्रीनशॉट निकाला, वो इमेज बन गया, उस इमेज को गूगल रिवर्स इमेज पे सर्च किया, राइट? अब मैं आपके सामने एक ऐसा छोटा सा सॉफ्टवेयर जो कि एक्सटेंशन में ही है वो दिखाने जा रहा हूँ, हाँ? उसको हम बोलते हैं इनविड, जो कि सामने आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे आप? गूगल पे जाएं और इस पे लिखें इनविड क्रोम एक्सटेंशन। इन माने इन, विड माने वीडियो, राइट? वीडियो के अंदर जो ये वेरिफिकेशन करेगा, तो जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप देख पा रहे हैं मेरे कर्सर को, एक्सटेंशन पे यहाँ पे आ जाएगा, राइट? ये इमेज को भी वेरीफाई करता है और वीडियो को तो करता ही करता है। फ्री है बिल्कुल और बहुत ही अच्छा है। इसको थोड़ा ध्यान से इसलिए सुनेंगे बिकॉज वीडियो वेरिफिकेशन के लिए इससे अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं है फ्रीली अवेलेबल, राइट?
इसको जब आप खोलेंगे तो ओपन इनविड करके आएगा आपके पास। तो ये जैसे आपको सामने दिख रहा है, आई थिंक इज इट विजिबल ना राहुल? यस ओके राइट, विजिबल है सर। हाँ, तो ये इसके इतने फंक्शन हैं। आप सबसे पहले जो काम का फंक्शन है मैं उसकी बात करूंगा, की फ्रेम्स पे आ जाइए। की फ्रेम का मतलब ये है कि अगेन ये एक वीडियो का एड्रेस मांग रहा है आपसे, या तो यूट्यूब पे है, फेसबुक पे, विमियो पे, ट्विटर पे, कहीं भी उसका यूआरएल आप यहाँ लाके डाल दें। यूआरएल आपको पता है, वीडियो के राइट साइड में क्लिक करते हैं तो एक लिंक होता है, उसको यहाँ लाके डाल सकते हैं। दूसरी कंडीशन में वो वीडियो आपके लोकल कंप्यूटर पे भी हो सकता है, जैसे ये रफाल का वीडियो था, तो उस केस में आप इसको यहाँ क्या करेंगे, यहाँ अपलोड कर दीजिए। अपलोड मैं यहाँ कर रहा हूँ रफाल वीडियो एंड सबमिट। अभी अपलोड कर रहा है, और अपलोड करते ही जब इसका ये कंप्लीट हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली आपको उसके की फ्रेम्स यानी स्क्रीनशॉट्स खींच के लेके आएगा उसमें, 5, 10, 20 व्हाटएवर, राइट। हमने तो वो स्क्रीनशॉट जबरदस्ती कैसे करके लिया था, विंडो का टूल का वो करके, लेकिन ये ऑटोमेटिकली देखिए ये अलग अलग स्क्रीनशॉट्स इसने बना दिए हैं। सिर्फ आपको इतना ही करना है, और यहाँ से आपको फिर राइट क्लिक करना है, तो फिर सेम प्रोसेस फिर वही गूगल इमेजेस वाला स्टार्ट हो जाएगा। यस और नो? क्योंकि अब ये क्लिकेबल है, अब ये इमेज है, एक स्क्रीनशॉट है वीडियो के अंदर से निकाला हुआ। इसको आप क्लिक कीजिए तो आप देखेंगे कि YouTube का वीडियो है वो भी दिखा देगा। अगर उस शॉट किसी वीडियो के एक भी शॉट में से ये टैली होता होगा तो आपको पता चल जाएगा कि असली वीडियो क्या है ना, राइट। तो ये इनविड आप इसको यूज कर सकते हैं अच्छे से, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। प्लस इसके अंदर एक और फंक्शन है कि अगर आप किसी वेबसाइट पे मान लीजिए चले जाते हैं, हाँ, वेबसाइट पे जाके अगर कोई भी इमेजेस आप देखते हैं, मान लीजिए ब्रेव्स एजुकेशन सोसाइटी, हाँ, आप ही का इंस्टीट्यूशन है, और अब ये सारे के सारे बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, हाँ, खड़े हैं। आप इसको एक बार पिक्चर को खोल लीजिए। अब इस पिक्चर में भी कुछ खास दिख नहीं रहा, हाँ, तो अब क्या करेंगे, राइट साइड पे क्लिक करें, इनविड, देखिए फेक न्यूज डिबंकर बाय इनविड वी वेरीफाइड, ये ऑटोमेटिकली राइट साइड पे आ जाएगा। और इमेज मैग्नीफायर पे क्लिक करेंगे अगर आप, तो क्या करेगा ये, वो इमेज को अपने अंदर खोल लेगा यहाँ पे, और फिर उस इमेज के अंदर आप ध्यान से देख लो इन बच्चों को, राइट, दिख रहा है आपको? अभी देखो बच्चा बिल्कुल क्लियर है, और जो टीचर हैं इनको भी थोड़ा आप क्लियरली ध्यान से देख सकते हो। जितना इसका रेजोल्यूशन आप अलाउ करें, आप उसको ध्यान से देख सकते हो, राइट। तो ये कई बार काम में आ जाता है, जैसे गाड़ियों के नंबर प्लेट्स हैं, बिल्डिंग्स के नाम है, पीछे फोन नंबर्स हैं, उससे आपको क्लू मिल सकता है, राइट। और बाकी इसमें टूल्स हैं जो वो है, मेटा डाटा का है, ट्विटर सर्च का है, ये भी बड़े काम का है। फॉर एग्जाम्पल कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी दूसरी पार्टी का 5 साल का पुराना ट्वीट रीट्वीट करती है, लेके आती है सामने कि देखो तुमने तब ये कहा था, अब तुम अपोजिट बोल रहे हो, हाँ, तो आपको पता करना है कि वो सच है क्या, हाँ। तो आप क्या करोगे, उस अकाउंट नेम को एंटर कर दोगे, फिल्टर डाल दोगे कि वीडियो है या लिंक है, इमेज है, क्या है, लैंग्वेज क्या है, सिटी का नाम डाल देंगे, टाइम का डाल देंगे, हाँ, और आप सर्च सबमिट करेंगे तो वो वाला ट्वीट अगर सही है तो तब वहां से आ जाएगा इस पे, राइट। तो ये चीजें आप करके, ये बिल्कुल मैं कहूँगा देसी टूल है। इसके बाद तो आपकी कॉमन सेंस ही बचती है इसको इंटरप्रेट करने के लिए, तो वी मस्ट यूज देम, राइट। और अगर मैं इसको यहाँ से बंद करके वापस अपनी प्रेजेंटेशन पे चलूँ तो देन आप देखिएगा, लेट मी टेल यू समथिंग, screen share again, I am sharing it, yes, and using image, okay। अब ये सारी की सारी जो हैं चीजें मैंने आपको अभी बता के हटा हूं कि इमेज अगर कोई है तो कितनी पुरानी है वो आपको पता चल जाएगी, और किस कंटेक्स्ट में यूज हुई है वो भी आपको पता चल जाएगी। ये सब मैं करा चुका हूं आपको, सर्च बाय इमेज, रेवर आई इमेज, रेव आई रिवर्स, ऐसे करके, राइट। इनविड भी हमने देख लिया है। और अब देखिए ये मैं
रियल में करके नहीं दिखाऊंगा, हमने ऑलरेडी किया हुआ है। ये एक न्यूज आई थी, इसको ध्यान से सुने बिकॉज इसमें एक अलग फंक्शन में इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये ट्वीट आया था किसी न्यूज चैनल का कि इटालियन मैन हु लॉस्ट हिज एंटायर फैमिली टू कोरोना वायरस फाइनली कमिटेड सुसाइड, राइट? ओके फाइन। तो क्या ये सच है? तो हमने क्या किया, इसका जो रेलेवेंट पोर्शन है इसको क्रॉप कर लिया, यानी ये वाला जो इतना इतना पोर्शन है बिल्डिंग का, सॉरी बिल्डिंग का इतना पोर्शन है, ये आकाश को छोड़ दिया, इस पे ध्यान फोकस किया, राइट? तो इसने बताया गूगल इमेजेस ने कि ये होटल वेलेंसिया है। अब वेलेंसिया स्पेन में है, इटली में नहीं है, राइट? बेला क्लू। फिर आप इसकी डेट देखिएगा, दिसंबर 27, 2019। फोटो इटली की बताई गई है, कोरोना से संबंधित बताई गई है, लेकिन इटली में तो कोरोना 20 फरवरी के बाद शुरू हुआ था, उससे पहले नहीं था। इसका मतलब ये इमेज जो है पहले भी कहीं सिस्टम पे पड़ी थी, हाँ, इंटरनेट पे कहीं थी। तो पता चला तो ये तो एक्चुअल में तो बिल्कुल सच्ची घटना है, लेकिन ये कोरोना से संबंधित नहीं थी। किसी व्यक्ति ने होटल की उससे सुसाइड किया था, लेकिन वो स्पेन की घटना थी और दिसंबर 27, 2019 की थी, राइट? सो इसलिए हम इस आधार पे कह सकते हैं कि ये क्या है, फोटो एंड ट्वीट जो है वो फेक है, राइट? ये वीडियो वेरिफिकेशन में आपको बता चुका हूँ कैसे हम इसको करते हैं, राइट? प्लगइन है और ये सारी के सारे उसमें फंक्शंस हैं। एक्सक्यूज मी, इसको मैंने ओके, स्लाइड थोड़ी हैवी है इस करके। हाँ, लुक एट दिस वीडियो। इसी तरीके से वीडियो को सर्च किया, बोले कि ईरान में इतने सारे लोग मारे गए, आप घरों में क्यों नहीं रहते हो, कोरोना फैला हुआ है, इतने लोग मारे गए। जब हमने देखा तो ये वीडियो यांडेक्स के थ्रू पता चला कि ये तो हज का वीडियो है 2019 का, 2019 का, और कोरोना उस टाइम तो था ही नहीं बिल्कुल भी। तो पता चला कि ये वीडियो भी फेक है। ओरिजिनल वीडियो आपके सामने है, प्ले करूंगा तो जरा टाइम लग जाएगा, जरूरत नहीं है, तो ये भी आपको फेक मिलेगा, राइट? ये अंतिम स्लाइड है इसकी। वो ये कहती है कि एक्चुअली दिस इज एन टेम्पलेट। जब भी आपके पास फोटो या वीडियो आए तो कुछ चीजें आप ध्यान से देखें, तो आपको पता चल जाएगा फोटो के बारे में या वीडियो के बारे में, कि आप उसके बिल्डिंग देखें, पीछे कोई लैंडमार्क है फोटो में या वीडियो में, और वो एरिया को देखें, आप उसकी स्क्रीनशॉट ले लें, गूगल इमेज मैप पे जाएं, तो मैप पे वो बता देगा वो कहाँ का इमेज है, किस कंट्री का है, किस सिटी का है, तो आपको आइडिया आ जाएगा। फिर उसमें आप फ्लैग्स को देखें, लोगो, बैजेस अगर पीछे कुछ हैं तो वो ध्यान से देखें। सोशल मीडिया पे अगर वीडियो है ये, तो कमेंट को ध्यान से पढ़ें। कमेंट में पक्का कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई कमेंट उसकी सच्चाई के बारे में जरूर मिलेगा, पक्का। नंबर प्लेट्स को देखें, जो व्हीकल्स अगर उसमें देख रहे हैं तो नंबर प्लेट देखें, उससे आइडिया मिल जाएगा किस कंट्री का है। और अगर कोई वीडियो बता रहे कि इंडिया का है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज का है, तो आप अगर व्हीकल की ड्राइविंग साइड को देखें तो आप देखेंगे कि यूएस में और जो है वो लेफ्ट साइड को है ड्राइविंग है पूरी, और कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं जो कभी ब्रिटेन के अंडर थे तो उनमें हमेशा स्टीयरिंग जो है वो राइट साइड को होता है। तो आप इस तरीके से भी पता कर सकते हो। फिर आप अगर वीडियो में कोई लोग दिखाई दे रहे हैं, उनका पहनावा आप ध्यान से देखो, लैंग्वेज देखो, कल्चरल ऑब्जेक्ट आपको मिल जाए, जैसे अफ्रीकन का आपको पता रहता है माला पहनते हैं गले में, ऐसा थोड़ा सा कुछ आपको वहीं से भी मिल जाएगा। फिर आप वेदर पैटर्न्स भी स्टडी कर सकते हो, और फिर आप बैनर्स, बिलबोर्ड्स और फोन नंबर्स जो होते हैं पीछे बिल्डिंग्स के ऊपर लिखे हुए या होर्डिंग्स पे, आप वो भी ध्यान से देख सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना ये जो है कर सकते हैं। और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड। मीडिया में अभी जो आज के दिन छटनी हो रही है बड़े बड़े लेवल्स पे, राइट? तो मीडिया का हाल आजकल बहुत खराब है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये फील्ड ऐसा है जिसमें नौकरियां आगे बढ़ेंगी। जितना ज्यादा आगे आगे हम टेक्नोलॉजी को डेवलप करते जाएंगे, फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पक्का, राइट? और उसके साथ उनको उनका पर्दाफाश करने वाले लोगों की भी जरूरत है मीडिया में। इसलिए इस फील्ड में तो लोग हैं ही नहीं, इसलिए आपकी एंट्री बड़े आराम से हो सकती है, बशर्ते कि आपको इसके बारे में ट्रेनिंग हो, राइट? और गूगल पे अगर जाके आप लिखते हैं उसमें फैक्टशाला ट्रेनिंग,
तो आप गूगल वाले आपको ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन वो कुछ सिलेक्टिव होते हैं। अभी 200 लोगों को उन्होंने ट्रेनिंग दे रहा है मीडिया लिटरेसी पे, राइट। आप देखिए अगर आपका उसमें सिलेक्शन हो जाता है तो इट्स ओके। वो 200 लोग जो है पूरे इंडिया में जाके सब लोगों को ट्रेनिंग देंगे, वो मास्टर ट्रेनर होंगे। तो आप वहां जाके भी उसमें अप्लाई कर सकते हो। गूगल में आप सिर्फ टाइप कर दें फैक्टशाला ट्रेनिंग बस, और फर्स्ट लिंक है उसको क्लिक कर दीजिएगा, गूगल फॉर्म है उसको भर दीजिएगा, राइट। तो यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ। आई थिंक आई हैव टेकन full 1 hour, and thank you so much, and I hope I am able to convey whatever little I could. Thank you so much. I can take the questions now if any. हेलो जी। हाँ सर आपने बहुत अच्छी तरह से फेक न्यूज के बारे में कैसे हम इसको चेक करेंगे, बहुत अच्छी जानकारी दिया। बट आज का यूथ सर मेरे ख्याल से उसकी पहली डिमांड होगी, पहली ख्वाहिश होगी कि हम बीजेएमसी कर रहे हैं, एमजेएमसी कर रहे हैं, तो इसमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज, जैसा कि आपने कहा कि मीडिया हाउसेस में इस समय जॉब की अपॉर्चुनिटीज कम हो गई है, लेकिन इन फ्यूचर बहुत सारे जॉब के अपॉर्चुनिटीज एरिया में आने के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो कौन कौन से एरिया हो सकते हैं सर? आपने बीच में एक वर्ड बोला पुलिस डिपार्टमेंट, लाइक एज ए पुलिस डिपार्टमेंट में भी इस तरह के जॉब की अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर आ सकती है। इस पे थोड़ा सा देखिए क्या है कि पुलिस वालों का काम अलग रहता है थोड़ा सा, उनका काम अलग है। मैं मीडिया इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूँ, जहाँ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या वेबसाइट्स, जो पोर्टल्स होते हैं वो भी अपना वीडियो या फोटो डालते हैं, उस पर उसकी वेरिफिकेशन करते हैं वो, राइट। तो उसमें जॉब्स की कहीं कमी नहीं है अगर हम लोग के पास स्किल हो तो, राइट जी। हाँ ठीक है ना। तो बाकी राहुल अगर क्वेश्चंस लेते हैं एक दो। जी हाँ सर, क्वेश्चन कुछ सर तेज कुमार धर्म पूछ रहे हैं कि सर हाउ आउटलुक कैन चेक द फैक्ट चेक। आउटलुक देखिए मैगजीन है, उनका पोर्टल है, ऑनलाइन वेबसाइट है, वहां पे जो फोटो डालते हैं उसकी वेरिफिकेशन करने के लिए उन्होंने लोग बैठा रखे हैं पीछे, और उनके पास यही स्किल होते हैं जो मैंने अभी आपको बताया था, राइट। तो यू कैन इजिली चेक देम, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वो तो काम है उनका सारे दिन, आप करने लग जाओ तो आपको भी आ जाएगा, राइट। तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है ज्यादा। सर एक और क्वेश्चन है, वो पूछना चाह रहे हैं, हाउ डू वी चेक व्हेन कंटेंट इज फैब्रिकेटेड। हाँ तो मैंने आपको अभी जो बताया है वो कितने सारे टूल्स हैं, टेक्स्ट की फॉर्म में आएगा, इमेज की फॉर्म में आएगा, वीडियो की फॉर्म में आएगा, राइट। 3 में से एक होगा। अब तीनों के टूल मैंने आपको बता दिए हैं, हाँ उसको जाके देखें और फिर अपना दिमाग यूज करें, अपनी इंटरप्रिटेशन लगाएं, ठीक है। सर एक अटेंडी पूछ रहे हैं कि इज इट अवेलेबल ओनली ऑन क्रोम और फायरफॉक्स आल्सो और अदर और ऑन अदर ब्राउजर्स आल्सो। हाँ देखिए, चूंकि फायरफॉक्स पे भी हैं और क्रोम पे भी हैं, और मुझे सफारी वगैरह के बारे में आइडिया नहीं है, बट आई होप है उस पे भी। इनविट तो है, और ये कोई बहुत ज्यादा कुछ बड़े एक्सटेंशन नहीं है, वो हर ब्राउजर पे आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, राइट। ठीक है जी। एक क्वेश्चन है सर, हाउ टू रिकॉग्नाइज द मॉर्फ्ड इमेजेस। मॉर्फ इमेजेस का, हाँ क्या कीजिए आप, जो भी इमेज आए आपके पास, राइट, उसको पहले तो आंख बंद करके गूगल इमेजेस पे अपलोड करो पहले तो, राइट। बाकी काम सारे बाद में करो, पहले गूगल इमेजेस पे अपलोड करो, एंड जितनी भी वो सिमिलैरिटी दिखाए उन इमेजेस के साथ, उसको आप सबको ध्यान से देखो। ऐसा भी हो सकता है कि 2 इमेजेस से 2 लोग उठाए और एक इमेज बना के आपको वायरल कर दिया, राइट। उस केस में आपको वो इमेज कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो है ही नहीं नेट पे कहीं, वो तो आप ही ने बनाई है ना। लेकिन जिस इमेज से उठाई है वो इमेज तो अवेलेबल है ना, तो आपको ऐसा भी करना पड़ सकता है कि एक फोटो की सच्चाई जानने के लिए आपको क्या पता 2 या 3 फोटो देखनी पड़े। ये काम आपको अपने दिमाग से करना पड़ेगा। सर यूट्यूब पर एक लक्ष्मी जादवन पूछे, हाउ कैन वी वेरीफाई द वेबसाइट
of a company which is fake? Exactly, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है. इसके लिए मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके बताना चाहूँगा और उसमें बहुत इजीली आपको मिल जाएगा. I'm so happy कि हमारे दर्शक इतने जो हैं इंटेलिजेंट हैं. ओके, आप गूगल पे जाएंगे तो इस पे टाइप कीजिएगा who is, only who is, स्पेस नहीं रहे who is में, और आपको जो भी ये फर्स्ट लिंक दे इस पे आप यहाँ पे चले जाइए. जो भी आपके सामने अभी वेबसाइट खुलेगी यहाँ पे आप उस वेबसाइट का नाम डाल दें और उस वेबसाइट के बारे में वो पूरी इंफॉर्मेशन दे देगा कि कहाँ से है वो, कब रजिस्टर हुई है, किसने रजिस्टर कराया है, रजिस्टर कराने वाले का ईमेल क्या है, फोन नंबर क्या है, दिस दैट. सो अगर तो वो सही है देन इट्स ओके. और अगर मान लीजिए वेबसाइट आ रही है पीएनबी बैंक के नाम से आपके पास, हाँ, और आपने इसमें डाला और इसमें रजिस्टर करा रखी है किसी एबीसीडी व्यक्ति के नाम पे, तो समझ लेना वो क्या है, गड़बड़ है. राइट, तो आप इससे पता कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट सही है या गलत है. जी सर, एक क्वेश्चन आया है, व्हाट प्रिकॉशंस कैन एन ओरिजिनेटर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक टू प्रिवेंट हिज इंफॉर्मेशन टू बी करप्ट इन इंटरनेट? हाँ, अब देखिए ये कोई प्रिकॉशन नहीं है आज के दिन में. आपने अगर इंफॉर्मेशन शेयर कर दी तो आपके हाथ से गई. अभी ये तो बाकी लोगों के हाथ में है कि उसको कैसे मॉर्फ करें, कैसे मॉडिफाई करें. क्योंकि एक बार जो आप देखिए वीडियो चला गया, इमेजेस चली गई, तो कितनी जगह जाएंगी वो आपको पता नहीं, और कितनी जगह अपने हिसाब से उसको कटिंग शटिंग करके या एडिटिंग करके नया उसका एक सच बना के सामने पेश किया जाएगा, वो आपको नहीं पता है, तो आप वो नहीं कर सकते. फॉरगेट अबाउट दैट. जी, एक क्वेश्चन है सर, विल रिवर्स इमेज वर्क विदाउट गूगल एनालिटिक्स? गूगल एनालिटिक्स का तो मैंने कहीं जिक्र नहीं किया इसमें. ये एक सिंपल वेबसाइट है इमेजेस की, तो एनालिटिक्स का कोई लिंक नहीं है. हाँ, आप सिर्फ उसमें अपलोड कर दें, उसके बाद रिजल्ट्स को आप रिसर्च करें, एनालाइज करें अच्छे से. अब्दुल अजीज यूट्यूब पर पूछ रहे हैं, there are many fake news spread on WhatsApp and Facebook. Is there any tool to report these news and to stop these news? Yes. अगर आप गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन अगर है वो, तो आप PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो फैक्ट चेक के नाम से है, उसको आप भेज सकते हो. उनके पास डेटाबेस है, वो एक दो एक्स्ट्रा काम ये करते हैं कि एक तो डेटाबेस बनाते हैं वो, तो उनको पता चल जाता है कि हमारी इंफॉर्मेशन को ऐसे ऐसे मिसयूज किया जा रहा है. फिर दूसरा ये है कि वो आपको बताएंगे कि ये फेक है या नहीं है. जैसे गवर्नमेंट के कई लेटर निकलते हैं HRD मिनिस्ट्री के, वो पता नहीं क्या क्या निकाल देते हैं लेटर और वो सर्कुलेट हो जाते हैं. तो अगर आप PIB को भेजोगे तो उनको जांच करके बता देगा कि ये सच है या नहीं है. राइट, तो ये काम आप कर सकते हो. सर, बाढ़ आई हुई है सर क्वेश्चंस की, तो राहुल सर. हाँ सर, एक क्वेश्चन आ रहा है, हाउ टू डिबंक डीप फेक एंड हाउ टू रिकॉग्नाइज दिस एज इट इज यूज्ड वाइडली. डीप फेक, डीप फेक का मीनिंग ये है कि जब आप मशीन लर्निंग एप्लीकेशन से यूज करके किसी का परफेक्ट वीडियो बनाते हो, राइट, तो इवन आप भी उसको अपने आंखों से तो उसको वो आप एनालाइज नहीं कर पाओगे. लेकिन अगेन यहाँ पे हमारा देसी फॉर्मूला काम में आता है. मान लीजिए शंभू शरण जी का कोई वीडियो है, राइट, और उन्होंने ऐसे ऑब्जेक्शनेबल वीडियो है वो, यानी उसमें वो कुछ बोल रहे हैं, हाँ, और वो ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं जो उनसे एक्सपेक्ट नहीं की जाती, हाँ, और वो उनकी आवाज भी है, उनका फेस भी है, वो लिपसिंग भी सही हो रही है, हाँ, इजंट इट. अब ये डीप फेक जो है ये कंप्यूटर और मशीन लर्निंग के थ्रू वॉइस सैंपल लेके किया गया. इसको आप केवल अपने आंखों, अपनी खुद की सेंसेस से आप इसको पकड़ नहीं पाओगे. उसके लिए बेस्ट तरीका है कि शंभू जी से पूछा जाए कि हाँ साहब ये आपका है, ये आपने बनाया है, तो सोर्स है जो सोर्स, उससे डायरेक्टली पूछा जाता है फिर. राइट, केवल इसका यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है अभी, क्योंकि मशीन लर्निंग एप्लीकेशन इतने स्मार्ट हो गए हैं कि पता ही नहीं चलता. हाँ, एक छोटा सा सैंपल उठाएंगे आपकी वॉइस का, उसमें हार्डली 5 या 7 सेकंड का सैंपल, और उससे बाकी के शब्द भी वो निकाल लेते हैं, इजंट इट, और लिपसिंग भी बढ़िया से करते हैं. राइट, तो बेस्ट यही है कि असली व्यक्ति से पूछा जाए कि साहब आपके नाम से ये हो रहा है, ये है क्या,
और वो जो हाँ ना बोलते हैं फिर उस पर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, राइट। डॉक्टर प्रोफेसर उमेश आर्या सर ने अपनी बहुत ही बहुमूल्य समय से कुछ टाइम हमारी ब्रेव सोसाइटी को और हमारे पार्टिसिपेंट को, अटेंडीज को दिया, और निश्चित रूप से हम ये मान के चलते हैं कि हमारे अटेंडी और हम सभी लोग इस वर्कशॉप में कुछ सीखे होंगे और उसका इन फ्यूचर अपने कैरियर में यूज करेंगे। आई थिंक इसका इन फ्यूचर अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटीज मुझे भी ज़्यादा ही कुछ दिखाई दे रहा है, सो दैट बीजेएमसी और जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स को इस पे पूरी तरह से फोकस करना चाहिए। इन फ्यूचर इसमें जॉब की ज़्यादा अवसर दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना टाइम निकाला इस सोसाइटी के थ्रू जुड़ने का। बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजक टीम को भी मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया, धन्यवाद सर, राहुल सर।